Assalamu alaikum and good evening. Okay, yesterday we initiated the discussion on strategy. We defined strategy in various ways. We discussed different aspects of the definition of the word strategy. Chandler, Drucker, we discussed JSW, Johnson, Scholes and Whittington schools of thought. We defined the way organizations develop their strategies at different levels, corporate level, business level strategies, functional level and operational level strategies. Then we discussed that what scope is covered in each of these level of strategies. Corporate level strategies cover the whole business. Business level strategies tells about specific business units a company is dealing with. Then functional level strategies talk about specific business functions. Operational level strategies deal with the day-to-day operations, daily operations that lead towards a final achievement of your goals. उसके बाद हम लोगों ने levels of planning को discuss किया था जी, strategic planning, tactical planning and operational planning. Today we are going to commence our discussion from elements of strategic management. Majority of you, some of you have joined that group. उस group के ऊपर मैंने case study upload की है Apple की. That's a very interesting case. It's a full length case. वो तकरीबन कोई 12-13 सफों की case study है. It's a full length case study. It is just recommended कि case study की ना habit develop करें इसको read करने की, ताकि आपके सामने जब पेपर में कोई full length case, obviously इतना 12-13 सफों का case तो नहीं आएगा, लेकिन still one page case study तो expected है पेपर के अंदर. जब आपके सामने पेपर में कोई case study आए, so you must be able to attempt it precisely and very easily. जी फेसबुक का ग्रुप है, कोर्स प्लान जो आपको दिया है उसके ऊपर उसका लिंक गिवन है. फेसबुक ग्रुप एक डेवलप्ड है बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी CFAP के नाम से, BMS CFAP. ज्वाइन दैट ग्रुप. ये मैंने कल भी अनाउंस किया था कि हमारे ये रूटीन जो डिस्कशंस हैं, जो हमारी रेगुलर अंडरस्टैंडिंग्स हैं, केस स्टडीज हैं, दे विल बी शेयर्ड ऑन दैट ग्रुप. ये उस ग्रुप के ऊपर हम लोग शेयर किया करेंगे. ये स्लाइड्स वगैरह, नोट्स, सब कुछ मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी डाल दी हैं. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लर्निंग अपार्ट फ्रॉम आवर रूटीन सेशंस. एडिशनल लर्निंग के लिए, वैल्यू एडेड लर्निंग के लिए मस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप. दैट्स अ वेरी प्रिसाइज सोर्स ऑफ लर्निंग. ओके ओके जी. एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. 3 एरियाज हैं. बिजनेस एनालिसिस के अंदर हमने कल डिस्कस किया था कि बिजनेस एनालिसिस जो है दैट डील्स विद 3 की कंसर्न्स, दैट इज स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड स्ट्रेटजी इनटू एक्शन. हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन देयर एग्जिस्टिंग पोजीशन. इदारे अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं. हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप चॉइसेस. स्ट्रेटजी की चॉइसेस को कैसे डिफाइन करते हैं. हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन द वे दे आर गोइंग टू अचीव देयर अल्टीमेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, and the way organizations are going to finally transform their ideas into action. Whatever strategy they have developed, उसको फिर practically कैसे करेंगे, execution process क्या होगा. ये strategy into action deals with execution. So this is known as strategic management process by JSW, Johnson, Scholes and Whittington. इसको strategic management process का नाम देते हैं. It is known as a strategic management process. बारी बारी हम इन तीनों एरियाज को डिस्कस करते हैं. देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेक होल्डर. स्ट्रेटेजिक पोजीशन. knowing your current position before you actually move into some decision making regarding what you need to do, what you need to achieve. किसी भी बिजनेस के अंदर आपने जब भी कुछ करना है, सबसे पहले करंट असेसमेंट होनी चाहिए आपकी. यू मस्ट बी नोइंग दैट करंट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी, करंट असेसमेंट मीन्स वेयर डू वी करंटली स्टैंड. हमारी करंट स्टैंडिंग क्या है एंड हाउ आर वी गोइंग टू लीड टुवर्ड्स आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. तो करंट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. असेसमेंट किस चीज की होती है. सबसे पहले एनवायरनमेंट की होती है, जिस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं. प्राइमरीली
असेसमेंट किस चीज की होती है? उस एनवायरनमेंट की जिसमें आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। असेसमेंट किस चीज की होती है? आपके रिसोर्सेज की होती है, जिन रिसोर्सेज के साथ आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ गोल ऑफ दे आर डिसाइडिंग कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करना है इन द कमिंग ईयर्स, दे हैव टू इंक्रीज देयर ऑपरेशंस इन मल्टीपल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये इनका गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले वो करंट एनालिसिस करेंगे, अपना करंट पोजीशन का एनालिसिस करेंगे, दैट वेयर डू दे करंटली स्टैंड, उनकी करंट स्टैंडिंग क्या है, उनकी करंट एनवायरनमेंट क्या है, हाउ आर दे कंपीटिंग इन देयर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, हाउ मेनी रिसोर्सेज डू दे हैव टू मूव इनटू अ न्यू बिजनेस और अ न्यू जियोग्राफिकल लोकेशन। उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं किसी नई जियोग्राफिकल लोकेशन में जाने के लिए, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं किसी नई कंट्री में अपने ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। And the third concern is assessment of expectations of stakeholders and their goals, whether or not their goals are compatible with the resources। जो आपने अपने goals establish किए हैं क्या वो compatible हैं आपके resources के साथ? That is a very important question to answer। Environment में हम आगे जाके पढ़ेंगे, different models हैं, माइकल पोर्टर्स डायमंड है। सेकंड चैप्टर हमारा पूरा environment के ऊपर है। थर्ड चैप्टर हमारा इंटरनल असेसमेंट के ऊपर है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के ऊपर है। स्टेक होल्डर्स में हम इसी चैप्टर में एक टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिकली योर कोर्स इज गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्री की एरियाज, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड स्ट्रेटेजिक implementation, strategy implementation, the way we are going to implement a strategy. Environment let you know in the external factors you are going to operate. Environment let you know the forces that drive the business. Environment आपको उन forces के बारे में बताते हैं जो drive करती हैं business को। For example, political forces हैं, ये पढ़ा होगा आपने पेस्टल BMBS में, जो लोग कैफ से आए हैं वो BMBS में पढ़ के आए होंगे। पेस्टल एनालिसिस, political factors, economical factors, socio-demographic factors, technological factors, ecological factors, ठीक है। Strategic capability defines your resource assessment। सुजुकी डिसाइड करे कि उसने BMW के लेवल की गाड़ी बनानी है, तो उनकी जो ये स्ट्रेटजी है ये कहां के फेल हो जाएगी? दे माइट नॉट बी हैविंग द एम्पल रिसोर्सेज टू वर्क आउट सच स्ट्रेटजी। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे ऐसी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, तो देयर स्ट्रेटजी माइट बी फेलिंग राइट अवे। एक्सपेक्टेशंस एंड पर्पसेस, व्हाट स्टेक होल्डर्स डिजायर, स्टेक होल्डर्स क्या डिजायर करते हैं, स्टेक होल्डर्स की क्या नीड्स होती है, स्टेक होल्डर्स जो है उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं आपके बिजनेस में। ये तमाम चीजें आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को क्लियर करने में हेल्प करती है। वंस यू हैव अंडरस्टूड योर पोजीशन, यू गो फॉर चॉइसेस। हैविंग द स्ट्रेटेजिक पोजीशन अंडरस्टूड, वी कंस्ट्रक्ट चॉइसेस। चॉइसेस 3 लेवल पे होती है। ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैव कॉर्पोरेट लेवल चॉइसेस, दे कैन हैव कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस ऑपरेशंस, इंटरनेशनल लेवल ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लेवल चॉइसेस क्या होती हैं? डाइवर्सिफिकेशन, वालेकुम अस्सलाम, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, मर्जर, एक्विजिशन, ऑल ऑफ दीज आर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। बिजनेस लेवल चॉइसेस क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेट करना है या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है। डेवलपमेंट एंड डायरेक्शन, अच्छा बिजनेस लेवल के अंदर आगे फंक्शनल लेवल चॉइसेस भी आ जाती हैं। HR स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजीज होंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज क्या होंगी। तो हर बिजनेस फंक्शन जो है उसकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को आप जो है वो डिफाइन करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्शंस एंड मेथड्स टॉक्स अबाउट ऑपरेशन, द वे यू आर गोइंग टू ऑपरेट इन अ करंट सिनेरियो। आपके ऑपरेशंस क्या होंगे करंट सिनेरियो के अंदर, आप किस तरह से अपने ऑपरेशंस को डायरेक्ट करेंगे, आप किस तरह से ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉइसेस टू अटेन देयर बिजनेस गोल्स, टू अटेन देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इदारे इन बुनियादों पे चॉइसेस को डेवलप करते हैं अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एंड द थर्ड कंसर्न, द थर्ड एलिमेंट इज implementation, strategy into action, bringing a strategy right away into action। strategy into action जो है वो 3 चीजें डिफाइन करती है। action is determined by 3 concerns। number 1,
ऑर्गेनाइजिंग, जब भी आप किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। द मोमेंट यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी यू आर गोइंग टू अपडेट योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करना है तो आप उसमें फिर नया ह्यूमन रिसोर्स ऐड करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग अलाउ यू टू रीस्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नाम है। किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने करंट सिस्टम को, आपको चेंज को इंड्यूस करना पड़ता है, आपको किसी ना किसी पैटर्न को अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक इदारा जो है वो एक स्ट्रेटजी चूज करता है रिट्रेंचमेंट की, स्क्वीज करता है अपने ऑपरेशंस को। एक इदारा जो है वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, इट स्क्वीजेस इट्स ऑपरेशंस। अब जब वो स्क्वीज करेगा तो ले ऑफ करेगा, ह्यूमन रिसोर्स को फारिग करेगा, कोई डिपार्टमेंट बंद करेगा, दे विल डू समथिंग, दे विल एक्चुअली डू समथिंग टू एक्चुअली इंप्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, ब्रिंग दैट स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है आपको। ऑर्गेनाइजिंग का लफ्जी मतलब यहाँ पे है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाके, हमारा 7th चैप्टर आएगा इसके ऊपर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। 7th चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, देन यू गो फॉर एनेबलिंग, फिर आप एनेबलर्स जो है, फॉर एग्जांपल रोल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी एनेबल्स यू, एनेबलर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं। एनेबलर्स आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली स्पीड अप। आपने कभी पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री, कैटलिस्ट का वर्ड यूज किया होगा आपने। कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट अपने आप किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बट इट स्पीड्स अप द रिएक्शन, वो रिएक्शन को तेज कर देता है। यही रोल एनेबलर्स करते हैं। एनेबलर्स जो है दे एक्चुअली एनेबल द बिजनेस टू मूव फॉरवर्ड। आईटी इज एन एनेबलर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी स्ट्रेटजी को एज अ प्रोजेक्ट इनिशिएट करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट की फेजेस को इंड्यूस करना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आप एनेबलिंग करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को आप अलाइन करके आप उससे एनेबलिंग करते हैं, वो आपके लिए एनेबलर है। You see? So this is how organizations actually manage their activities and their functions. And the third factor is change management. अच्छा, change management के अंदर if you remember, आपने शायद पहले कर्ट ल्यूइन का मॉडल पढ़ा होगा, पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, प्लान्ड चेंज थ्योरी, जिसकी 3 स्टेजेस होती हैं। इट हैज 3 स्टेजेस, डीफ्रीज, ब्रिंगिंग द चेंज एंड देन रीफ्रीज। आप अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को डीफ्रीज करते हैं किसी भी चेंज को लाने के लिए, टू ब्रिंग एनी चेंज, किसी भी चेंज को इंड्यूस करने के लिए, फॉर एनी चेंज टू बी इंड्यूस्ड आपको एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ता है। यू हैव टू इनिशिएट अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस टू इंड्यूस एनी चेंज। आप डीफ्रीज करते हैं, आप चेंज को इंड्यूस करते हैं, फिर आप रीफ्रीज करते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटीज, ये तीनों काम आप करते हैं when we have to bring a strategy into action, जब हमें किसी स्ट्रेटजी को एक्शन में लाना हो, जब हमें किसी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना हो, तो हम ये तीनों के तीनों काम उसमें परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। नोइंग योर पोजीशन, आइडेंटिफाइंग वेयर यू करंटली स्टैंड, हाउ? थ्रू एनवायरमेंटल असेसमेंट, थ्रू नोइंग योर रिसोर्सेज, and through assessing the expectations of your stakeholders and evaluating the purposes and goals of organization. दूसरा काम, strategic choices, developing options to apply. Choices क्या होंगी आपके पास? Choices can be constructed at corporate level, choices can be constructed at business or functional level, और choices can be developed at operational level. और फिर तीसरा काम आप करेंगे स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी राइट अवे। ऑर्गेनाइजिंग, एनेबलिंग एंड चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस से आप किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली ब्रिंग द थिंग्स इनटू एक्शन एंड लेट अ स्ट्रेटजी अचीव अ कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर द कंपैटिटर। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एंड दैट इज स्टेक होल्डर्स। बट बिफोर वी जंप टू स्टेक होल्डर, लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड स्ट्रेटजी। इदारे का पर्पस क्या होता है, इदारे किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को। दिस इज बेसिकली अ वेरी सिंपल हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान। सबसे पहले एक इदारे के पास एक विजन होता है, मिशन से भी ऊपर विजन होता है। देयर इज अ विजन बियॉन्ड अ मिशन।
वीएन डिफाइन करता है वेयर यू विल बी इन द लॉन्गर रन। आज से लेट्स से 10 साल बाद, 8 से 15 साल बाद एक इदारा अपने आप को कहां देखता है, उसका वीएन है। वीएन इज अ वेरी वेग पिक्चर ऑफ रियलिटी। वीएन हकीकत की बड़ी धुंधली सी तस्वीर होती है। वीएन इज नॉट क्लियर। वीएन जो है वो क्लियर नहीं होता। वीएन से आप ट्रांसफॉर्म करते हैं मिशन। मिशन इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई डू वी एग्जिस्ट, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। मिशन गिव्स अ बिजनेस रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। मिशन आपको बताता है कि आप दुनिया में क्यों आए हैं, आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं। गोल्स आर योर ओवरऑल एम्स। गोल्स आपके क्वांटिफाइबल एम्स होते हैं जिनको पूरे इदारे ने अपना डिवाइस किया होता है टू बी अटेन्ड। गोल से निकलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मींस फंक्शनल। मार्केटिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फाइनेंस के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एचआर के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो है ये फंक्शनल होते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज अपना स्ट्रेटजीज को डिवाइस करते हैं। वी डेवलप स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक एम्स, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, टैक्टिकल प्लान, आपकी बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। तो ये 3 लेवल स्ट्रेटजी के ये बेसिकली एक पिरामिड में हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप किस तरह से अपने प्लानिंग को डिवाइस करेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू अचीव योर टारगेट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड बजटिंग। और फंक्शनल लेवल पे आप उसे कैसे करेंगे। एंड देन हाउ आर यू गोइंग टू डिवाइस योर एक्चुअल रूटीन ऑपरेशंस टू अचीव योर एक्शन प्लान टू अचीव द टारगेट। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक्शन प्लान को कैसे एक प्रोसेस में लेके आएंगे। तो ये एक जो हायरार्की है, दैट हायरार्की डिफाइंस अ वेरी सिंपल पिक्चर ऑफ मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। बारी बारी इन सारी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको इस तरह की डेफिनेशन, इट्स वेरी रेयर कि इस तरह की डेफिनेशन आए, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। एक इदारे के होने की वजह उसका मिशन है। मिशन डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस इन द सोसाइटी। एक इदारे की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है सोसाइटी में, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर्स। मिंट्सबर्ग के मुताबिक मिशन अपना डिफाइन करता है एक इदारे के अंदर उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को। मिशन स्टेटमेंट इन सवालों के जवाब देती है। व्हाट इज आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है। व्हाट इज आवर वैल्यू टू कस्टमर, व्हाट इज आवर कोर कॉम्पिटेंसी, हम कस्टमर को क्या देते हैं। व्हाट विल आवर बिजनेस बी, आने वाले कल में हमारा बिजनेस क्या होगा। एंड व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए। व्हाट शुड का जो पॉइंट है इसमें फिर आप अपनी वैल्यूज, अपनी नॉर्म्स, अपने कल्चर को डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट विल आवर बिजनेस बी, इसमें फिर आप क्वांटिफाई करते हैं अपने टारगेट्स को। तो ये विल में और शुड में ये फर्क है कि विल डिटरमिन द क्वांटिटेटिव टारगेट्स ऑफ अ बिजनेस, दैट वेयर डू यू करंटली आर, द वेयर यू करंटली आर एंड वेयर डू यू वांट टू बी। एंड व्हाट शुड आवर बिजनेस बी डिटरमिन द डिग्री ऑफ वैल्यूज, योर नॉर्म्स, योर कल्चर, योर बिलीफ। ये आप इन तमाम चीजों को अपने शुड में कन्वर्ट किया, हमारा बिजनेस ये होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। ठीक है। सो व्हाट शुड आवर बिजनेस बी जो है ये डिफाइन करता है कि आपका जो बिजनेस है उसकी अल्टीमेट नॉर्म्स क्या होंगी, उसकी की प्रैक्टिसेस क्या होंगी। दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन अ मिशन स्टेटमेंट। वीएन ब्रॉड होता है मिशन से। वीएन इज ब्रॉडर देन मिशन। वीएन डिफाइन अ डिजायर्ड ऑप्टिमल फ्यूचर स्टेट ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव ओवर टाइम। 8 से 5 साल बाद एक इदारा क्या होगा, 8 से 10 साल बाद एक इदारा क्या होगा, ये उसका वीएन है। वीएन इज द ब्रॉडेस्ट फिनोमिना, मिशन इज अ नैरो वन। वीएन ब्रॉड होता है, मिशन नैरो होता है। मिशन स्टेटमेंट क्या पर्पस सर्व करती है एक इदारे के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। रेलेवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, द पर्पस इज, इसके ऊपर एक आई गेस बीएम में इसके ऊपर मैंने शायद देखा था, बहुत क्वेश्चन भी है पास पेपर में कि मिशन स्टेटमेंट क्या पर्पसेस सर्व करती है एक इदारे के लिए। व्हाट आर द की पर्पसेस सर्व्ड बाय अ मिशन स्टेटमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट आपको एक बेसिस बुनियाद दे देती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन की, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। मिशन स्टेटमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट से आप अपने ब्रॉड इंटेंशन, अपने विजन को ट्रांसलेट कर लेते हैं अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। मिशन स्टेटमेंट
provides you a framework to translate your overall goals into specific departmental objectives. मिशन स्टेटमेंट से आप इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉइज को, यू इंस्पायर एम्प्लॉइज, मोटिवेट करते हैं। मिशन स्टेटमेंट से आप अपने स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि आप कौन हैं, हु यू आर, व्हाट ऑपरेशंस यू आर हैंडलिंग। तो मिशन स्टेटमेंट ऑल्सो गिव अ बेसिक क्लियर अ पिक्चर टू योर स्टेक होल्डर, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट जो होती है ये पब्लिक होती है। हर अच्छी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट उसकी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। मिशन स्टेटमेंट पब्लिक होती है, सबके लिए होती है। तो मिशन स्टेटमेंट गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इदारा क्यों है मार्केट में, इदारे की क्या इंटेंशंस हैं, इदारा क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट आपको गोल्स और एथिक्स को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। व्हाट शुड आवर बिजनेस बी वाली जो हमने बात की थी ना अभी, व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, व्हाट शुड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एथिक्स को डिफाइन कर रहा है। इट इज डिफाइनिंग द एथिक्स, ये एथिक्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है जी। So this is how the mission statement is relevant and defines some purposes towards organization. फिर आते हैं goals और objectives. Goals are the overall aims of an entity to achieve. पूरी entity के aims होते हैं जो achieve करने होते हैं। They are narrative होते हैं। They are broad intentions. Broad means organization wide. ये पूरे इदारे के होते हैं। For example, an entity might have the goal of maximizing the wealth of its shareholders, or the goal of being the world's leading business entity in one or more markets. अब ये बड़ा ब्रॉडर गोल है, पूरे इदारे का गोल। इस गोल को अब आप स्पेसिफाई करेंगे, इस गोल को अब आप स्पेसिफाई करेंगे क्वांटिटेटिवली, फंक्शनल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे। इसके लिए हम यूज करते हैं स्मार्ट गोल्स। गोल्स आर स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। स्पेसिफिक, फंक्शनल, measurable, quantitative, numerically measured हो। agreed, consensus, जितने भी स्टेक होल्डर्स उन गोल्स को सेट करने में एंगेज हैं उनका कंसेंसस होना चाहिए। रियलिस्टिक, बेस्ड ऑन रियलिटी, हकीकत पे मबनी होने चाहिए। इसे भी मैं अपना एग्जांपल कोट करता हूँ। टाइम बाउंडेड, फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है, लेट्स से एक XYZ कंपनी अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करती है मार्केटिंग फंक्शन का, that they are going to reduce their customer churn rate. Customer churn rate जो है ये customer loss rate होता है कि कितने कस्टमर फिर कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, इसे कहते हैं customer churn rate। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है that they have to reduce their customer churn rate by 15% in 2016। ठीक है। अब देखिए ये गोल जो है स्पेसिफिक भी है, यस, मार्केटिंग के फंक्शन का है, मेजरेबल भी है, क्वांटिफाइबल भी, यस, 15% कम करना है हमने, एग्रीड भी है, डेफिनेटली जिन लोगों ने ये गोल सेट किया होगा दे ऑल आर एग्रीड ऑन द गोल, रियलिस्टिक भी है, बिल्कुल पॉसिबल है, कंपनी अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करे तो 15% तक कस्टमर चर्न को कम कर सकती है, हकीकत में मबनी है। एंड टाइम बाउंडेड भी है, 2016 तक इसको आपने अचीव करना है, तो दिस इज टाइम बाउंडेडनेस। So this is a smart objective, ये एक smart objective। हायरार्की ऑफ मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे आर द स्पेसिफिक अचीवेबल टारगेट जो फंक्शनल लेवल पे आइडियली हम लोग डिवाइस करते हैं। हु डिसाइड्स मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव? कौन ये सारा डिसाइड करता है? हु इज द की स्टेक होल्डर? जनरली फॉर्मल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड बाय द लीडर। मिशन और मिशन स्टेटमेंट जो है ये भी आपके टॉप मैनेजमेंट इशू करती है, जनरली बोर्ड के एग्रीमेंट से इशू किए जाते हैं। आपका जो बोर्ड है उसके डिसीजन होते हैं टुवर्ड्स डिफाइनिंग द मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ताकि कंपनी जो है वो प्रॉपरली तमाम स्टेक होल्डर्स के इनपुट को उसमें इनकॉर्पोरेट करे और मैक्सिमम पॉसिबल कंसेंसस बिल्डिंग करे गोल के ऊपर। एक टॉपिक आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन इफेक्टिव एंड यूनिवर्सल गोल। इसे हम नाम देते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो टॉप मैनेजमेंट जो है दे हैव द प्राइम प्रिंसिपल, द प्राइम कंसर्न ऑफ डेवलपिंग द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। स्टेक होल्डर कौन होता है? हर वो इंसान, हर वो इंडिविजुअल, हर वो एंटिटी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो एलिमेंट जो किसी ना किसी वे में
आपके इदारे को इन्फ्लुएंस करे या आपसे इन्फ्लुएंस हो, उसे आप स्टेक होल्डर कहते हैं। Stakeholder is any individual, any organization, any entity that directly affects your business or is affected by your business. जो आपको अफेक्ट करे या आपसे अफेक्ट हो, इसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इज एनी एंटिटी, एनी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन that have a direct interest or stake in the company। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या होती है स्टेक होल्डर्स की? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर। हम जनरली स्टेक होल्डर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और अब एक तीसरी कैटेगरी में डिस्कस की जाती है, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। खैर आपकी किताब में कनेक्टेड का जिक्र नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल का सिर्फ जिक्र किया गया। कुछ स्टेक होल्डर्स की पावर ज्यादा होती है, कुछ ही कम होती है। सम स्टेक होल्डर्स आर मोर इन्फ्लुएंशियल, सम आर लेस इन्फ्लुएंशियल। कुछ स्टेक होल्डर ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, और कुछ स्टेक होल्डर जो है वो एक सर्टेन लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को। अब डिपेंड करता है कि स्टेक होल्डर की पावर कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन को। देन स्टेक होल्डर्स के अंदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में कस्टमर भी होते हैं, डायरेक्टर इंटरनल होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर भी इंटरनल होते हैं, एम्प्लॉइज भी इंटरनल होते हैं, गवर्नमेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, प्रेशर ग्रुप्स फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप या ह्यूमन राइट्स ग्रुप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, लोकल कम्युनिटी जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, जनरल पब्लिक। अच्छा, एवरी स्टेक होल्डर have three concerns with an organization। हर स्टेक होल्डर के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कुआत होती हैं, उनकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एवरी स्टेक होल्डर हैज सम इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस इन अ बिजनेस। एवरी स्टेक होल्डर हैज सम ड्यूटी टू परफॉर्म, स्पेशली इंटरनल स्टेक होल्डर्स की, एंड एवरी स्टेक होल्डर हैज सम पावर टू बी प्रैक्टिस्ड। स्टेक होल्डर जो है, इनके तीन ब्रॉडर एरियाज ऑफ कंसर्न है। There are three broader areas of concerns of stakeholders. Stakeholders have some expectations, हर stakeholder की, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है। For example, customer का interest क्या है? That customer is willing to acquire a quality product। Quality product जो है वो customer का interest है। For example, supplier का interest क्या है? Supplier is willing to be paid in time। Government का interest क्या है? Government wants their operations to be transparent, ताकि टैक्स आप टाइम पे पे कर सकें, टैक्स की ब्रैकेट में आप सही फॉलो करें। ठीक, इसी तरह लोकल जो कम्युनिटी है उसका इंटरेस्ट क्या है? आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करें, जॉब क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट पैदा हो। एवरी स्टेक होल्डर हैज सम ऑफ द इंटरेस्ट। हर स्टेक होल्डर की, स्पेशली इंटरनल स्टेक होल्डर की ड्यूटीज होती है। फिर हर स्टेक होल्डर की सर्टेन पावर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की पावर क्या है? गवर्नमेंट कैन इम्पोज लॉज एंड रेगुलेशन। कस्टमर के पास बाइंग पावर है। कस्टमर कैन मेक अ डिसीजन ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट। आप उसे कंपेल तो नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट कोर्स द कस्टमर टू परचेज योर प्रोडक्ट। आप उसको कंपेल तो नहीं कर सकते ना। तो कस्टमर के पास पावर है दैट वेदर और नॉट ही और शी कैन बाय योर प्रोडक्ट। लोकल जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके पास पावर है कि वो आपकी जो आपके ऑपरेशन हैं उसको वो पब्लिक में ड्रैग कर सकते हैं। दे कैन ड्रैग योर ऑपरेशन इन पब्लिक, उनके पास ये पावर है। ठीक है, every stakeholder has some power to be practiced in organization। stakeholder expectations जैसा भी डिस्कस किया, every stakeholder has a different set of expectations, और organizations का जो कंसर्न होना चाहिए आजकल, that is to maximize the expectations of stakeholders। एजेंसी थ्योरी का नाम कभी सुना आपने? Have you ever heard about agency theory? जिसमें एक एजेंट होता है और एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना? एजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। एजेंसी थ्योरी कहती है जनाब, देयर इज वन एजेंट एंड वन प्रिंसिपल, एंड एजेंट इज फोकस्ड एंड ही इज बाउंड टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। इसे कहते हैं एजेंसी थ्योरी। आजकल इस्तेमाल होती है स्टीवर्डशिप थ्योरी। आजकल हम यूज करते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी को। अपार्ट फ्रॉम एजेंसी थ्योरी, नाउ अडेज वी यूज स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी कहती है कि एजेंट जो है, he is not
bound to maximize the benefit of the principal only, rather he is bound to maximize the benefit of all the stakeholders. यानी एजेंसी थ्योरी के मुकाबले में जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है उसमें सिर्फ प्रिंसिपल की बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना काम नहीं, बल्कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स की नीड्स को फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टेक होल्डर हैव डिफरेंट, ये कुछ एग्जांपल दी जा रही है। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हैं। अब शेयर होल्डर के राइट्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है बिजनेस में, उनके पास पावर क्या है। शेयर होल्डर हैज पावर टू वोट। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर हैज अ राइट टू सेट आउट इन कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। शेयर होल्डर की ड्यूटी खास कोई नहीं होती। शेयर होल्डर की तवक्कुआत क्या है, इनके इंटरेस्ट क्या है, शेयर प्राइस ग्रो करें, स्टेबल डिविडेंड मिले उन्हें, अपनी रिटर्न के उन्हें स्टेबल डिविडेंड मिले, उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर मिले, उन्हें कंसल्ट किया जाए बिफोर द बोर्ड मेक एनी डिसीजन ऑन अ मेजर इशू। डायरेक्टर्स के राइट्स क्या है, दे आर द की डिसीजन मेकर्स। डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है, दे हैव अ लीगल ड्यूटी टू टेक ड्यू केयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव टू पोजेस द स्किल टू मैनेज एंड रन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर्स की तवक्कुआत, इनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, पर्सनल एडवांसमेंट, ग्रोथ, रेम्यूनरेशन, सैलरी, स्टेटस, ये तमाम इनकी एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरह एम्प्लॉइज हैं, आपके सीनियर मैनेजर्स हैं, इनके राइट्स क्या है, इनके पास पावर क्या है, इनके पास एम्प्लॉयमेंट राइट्स होते हैं, दे कैन हायर पीपल, दे कैन हायर एम्प्लॉइज। ड्यूटीज क्या है, टू कैरी आउट द डेलीगेटेड टास्क इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनकी तवक्कुआत क्या होती है, पर्सनल एडवांसमेंट, स्टेटस, रेम्यूनरेशन, and I believe that they have the power to make strategic decisions. So generally internal stakeholders जो हैं उनकी ड्यूटीज भी होती हैं, external stakeholder की खास ड्यूटी नहीं होती towards the business. Every stakeholder has a different set of expectations. Employees की तवक्कुआत क्या है कि employees को fairly पे किया जाए। Employees expect to be paid fairly. Employees expect job security. Employees expect career progression. Employees expect good working conditions. कस्टमर की तवक्कुआत क्या है, कस्टमर इज कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी और द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड। सप्लायर्स की तवक्कुआत क्या है, दैट दे वांट टू डेवलप गुड बिजनेस रिलेशन विद ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेटली दे वांट सम इंप्रूवमेंट इन वैल्यू नेटवर्क। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, सप्लाई चेन में पूरा टॉपिक आएगा हमारा वैल्यू नेटवर्क का। लोकल जो कम्युनिटी है उसकी तवक्कुआत क्या है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स पैदा हो, इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी आए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। जनरल पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस क्या है, पोल्यूशन इदारा ना पैदा करे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑपरेशंस मैनेज करे इदारा, ठीक है ना, दे हैव कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। इसी तरह डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी डिफरेंट इंटरेस्ट, उनकी डिफरेंट तवक्कुआत होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न स्टेक होल्डर का, दैट इज पावर, पावर ऑफ स्टेक होल्डर। एवरी स्टेक होल्डर हैज सम पावर टू प्रैक्टिस। पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंटरेस्ट। हर स्टेक होल्डर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसके इंटरेस्ट होते हैं। हर स्टेक होल्डर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई ना कोई पावर प्रैक्टिस करता है इदारे के ऊपर। एवरी स्टेक होल्डर वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल हैज सम पावर टू प्रैक्टिस। एवरी स्टेक होल्डर वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल हैज सम इंटरेस्ट इन द फर्म्स ऑपरेशन। So power of stakeholder is also affected by multiple means, different means से affect होती है power of stakeholder। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज की पावर बढ़ती है एज दे बिकम मोर स्किल्ड। जो जो एम्प्लॉइज स्किल्ड होते हैं उनकी पावर बढ़ती है। जो लोकल कम्युनिटी है इनकी पावर जो है वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर। जब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो लोकल कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाती है। पावर डिफरेंट सोर्सेज से आती है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर। इंटरनल स्टेक होल्डर की पावर सोर्सेज डिफरेंट है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की पावर सोर्सेज डिफरेंट है। स्टेक होल्डर विद इन द एंटिटी, ये इंटरनल स्टेक होल्डर की पावर सोर्सेज हैं। दीज आर द पावर सोर्सेज ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर की पावर कहां से आती है, उनका डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, उनकी पोजीशन पावर, हायरार्की में उनके पास एक सर्टेन पोजीशन होती है ना। तो एवरी स्टेक होल्डर हैज अ पोजीशन पावर। पोजीशन पावर मींस जो कुर्सी आपको पावर देती है, द पावर ऑफ योर हायरार्की इन द मैनेजमेंट ट्री। मैनेजमेंट के ट्री के अंदर आप कहां पे फॉल कर रहे हैं, हर कुर्सी की अपनी एक पावर होती है। एवरी पोजीशन हैज इट्स ओन पावर। फॉर एग्जांपल एक इदारे का मार्केटिंग मैनेजर है, ही हैज द पावर टू टेक द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू एनी डायरेक्शन।
वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को किसी भी सिम्त में लेके जा सकता है, ये उसकी पोजीशन पावर है, दैट इज हिज पोजीशन पावर। ये उसकी पोजीशन पावर कहलाती है। So this is how organization construct and influence। अच्छा, फिर एक होती है करिज्मेटिक पावर, पर्सनल क्वालिटी से इन्फ्लुएंस करना। करिज्मेटिक, इसे कहते हैं करिज्मेटिक पावर। मैक्स वेबर जो है वो इसको करिज्मेटिक पावर कहते हैं। करिज्मेटिक पावर इज द पावर ऑफ पर्सनालिटी। करिज्मा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, करिज्मा का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा। तो करिज्मेटिक पावर इज द पावर दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड ऑन अदर्स थ्रू द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। देन कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को, तो वो अपनी पावर को प्रैक्टिस करती है। इसी तरह एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की अपनी पावर्स होती हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ पावर टू प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इंटरनल ही चल रही है, ओके। नॉलेज एंड स्किल, इंटरनल स्टेक होल्डर की अभी बात हो रही है, चलें लेट अस कंप्लीट इट फर्स्ट। डिस्क्रिशन को अप्लाई करना, फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू द एंटिटीज एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर ऑफर इन्फ्लुएंसेस पावर बिकॉज he or she believes that he or she know the customer best। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर अपनी पावर को इस्तेमाल करता है बिकॉज ही नोज दैट ही हैज द स्किल टू इवैल्यूएट कस्टमर नीड्स। अच्छा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की पावर कहां से आती है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पावर आएगी लॉज एंड रेगुलेशन से, गवर्नमेंट लॉज इंपोज करती है। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन पर्टिकुलर कस्टमर और सप्लायर, इनको बना देती है पावरफुल। कस्टमर के पास बाइंग पावर होती है, बाइंग पावर, और सप्लायर के पास सप्लाइंग पावर होती है। सप्लायर आपको ना सप्लाई करे अगर कोई स्कार्स रॉ मटेरियल, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी हाईली अफेक्टेड। इसी तरह और स्टेक होल्डर्स हैं आपके। फॉर एग्जांपल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एक्सटर्नल एंटिटी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी। लेट्स से एक कंपनी जो है वो इंटरनेशनली ग्रो करती है, इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रेटजी अप्लाई करती है, इंटरनेशनल ग्रोथ। अब इंटरनेशनल ग्रोथ के अंदर कंपनी जो है वो लाइसेंसिंग करती है, दे गो फॉर लाइसेंसिंग। वो अपना लाइसेंस देती है किसी लोकल फर्म को। अब जैसे ही वो लाइसेंसिंग करेगी, उसकी एक स्ट्रेटजी के अंदर एक थर्ड पार्टी एंगेज होगी, एक्सटर्नल एंटिटी एंगेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अक्सर कंपनीज जब अपनी स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं, तो फिर उन्हें थर्ड पार्टीज को भी एंगेज करना पड़ता है, उन्हें थर्ड पार्टीज को भी बीच में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल पावर है वो कम हो जाती है, एंड अदर एंटिटीज get some power to be practiced on that organization। So power of external stakeholder जो है वो नॉलेज एंड स्किल से भी आती है। फॉर एग्जांपल सब कॉन्ट्रैक्टर है आपका, आउटसोर्स कंपनी जिसको आपने आउटसोर्सिंग की हुई है, वो नॉलेज और स्किल से आपको इन्फ्लुएंस करेगी। So every stakeholder has some power and some interest in organization। इसको हम डिस्कस करते हैं पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स के अंदर, इसे हम नाम देते हैं मेंडलोज मैट्रिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी है पास पेपर्स के अंदर, बीएम के पास पेपर्स में। इस पे इंशाल्लाह आज मैं एक केस स्टडी अपलोड करूंगा, वो स्पेसिफिकली स्टेक होल्डर मैपिंग के ऊपर होगी, एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट केस। और वॉलंटियर सबमिशन अगर आपने करनी होगी तो आप उसे कर सकते हैं। केस स्टडी को सबमिट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इट्स अ वेरी सिंपल वे टू सबमिट अ केस स्टडी। यू कैन सिंपली अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है, नॉट टाइप इट, सिंपल आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को हाथ से, पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर। देन ईदर स्कैन इट और जस्ट टेक अ पिक्चर, उसकी पिक्चर ले लें, स्कैन करें या पिक्चर लें, दोनों केसेस में आप उसे ईमेल कर दें कोऑर्डिनेटर को, ठीक। तो शी विल सेंड इट टू मी, आई विल मार्क इट, मार्क उसका प्रिंट लेके उसे मैं मार्क कर दूंगा, वो फिर दोबारा स्कैन होके आपको मिल जाएगा, जस्ट टू इवैल्यूएट योर और जस्ट टू असेस योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये एक वॉलंटियर एक्टिविटी है। केस स्टडीज जो है वो पढ़ने के लिए अलग है, अटेम्प्ट करने के लिए अलग है। जो कल अपलोड किया वो सिर्फ पढ़ने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड एट ब्रॉडर लेवल कि स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उस केस को स्टोरी समझ के पढ़ें तो यू विल गेट अ वेरी डीप इनसाइट ऑफ हाउ एप्पल हैज डेवलप्ड ओवर टाइम। किस तरह स्टीव जॉब्स को उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, फिर से रीहायर किया गया 2005 में, फिर उसने जब कम बैक किया तो उसने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जस्ट रीड इट वंस, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने का। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अटेम्प्ट करने के लिए केस स्टडीज आपको मिलेंगी, यू विल बी गेटिंग सम केस स्टडीज टू अटेम्प्ट,
जैसे स्टेक होल्डर मैपिंग के ऊपर मैं केस इंशाल्लाह आज दूंगा आपको। तो वो अटेम्प्ट जो आप अगर करना चाहें, दैट इज अ फ्री विल, ये अभी अपलोड होगी आज। स्टेक होल्डर वाली केस स्टडी मैं इंशाल्लाह आज रात को अपलोड करूंगा। ये चीज जो एप्पल वाली ऑलरेडी अपलोडेड है आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, जो मैंने आपको कोर्स प्लान में एक लिंक दिया है ना फेसबुक के ग्रुप का, उस ग्रुप के ऊपर जितना भी हमारा कंटेंट है कोर्स के हवाले से, ये स्लाइड्स हैं या ये आपका जो मटेरियल है, ये ईमेल भी होगा आपको, डेफिनेटली आपकी ईमेल में भी आएगा, और ये मैं उस ग्रुप के ऊपर भी अपलोड करूंगा। तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। फेसबुक तो खैर हर कोई यूज करता है, ठीक है जी। माशाल्लाह फेसबुक अगर एक फिजिकल मुल्क हो तो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, आफ्टर चाइना एंड इंडिया, ठीक है जी। बड़ी आबादी है फेसबुक के ऊपर। अभी 1 बिलियन यूजर्स अपना सेलिब्रेट किए स्टीव अपना इसने मार्क जुकरबर्ग ने, तो 2-3 महीने पहले दे हैव सेलिब्रेटेड 1 बिलियन यूजर्स। हाँ, सून दे माइट टेक ओवर चाइना, एग्जैक्टली। लिखा हुआ था ना जी कि आई जस्ट रेड इट ऑन फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट आई हुई थी कि जी इट इज एविडेंट दैट मार्क जुकरबर्ग हैज जस्ट सेलिब्रेटेड 1 बिलियन यूजर्स बट ही नेवर न्यू के मोहम्मद इरफान और सोनी कुड़ी एक ही बंदा है। तो वो बहुत सारे फेक अकाउंट भी हैं, तो वो इतने लोग नहीं है जितने के अपना उसने बनाए हैं एक्चुअली। तो 1 बिलियन डजंट मीन 1 बिलियन, 1 बिलियन जो है डजंट मीन कि वो 1 अरब ही होगा, वो कम होगा 1 अरब से, ठीक। anyhow, so many people have operate so many accounts anyway, but we are not going in that debate. एक important source है सोशल मीडिया का, and it is important to have interaction over there. तो मैं काफी एक्टिव होता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और मैं उसको पॉजिटिव लर्निंग सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, काफी उससे आपको इफाका होगा इंशाल्लाह, ठीक है। एनी 5 मिनट की ब्रेक करते हैं छोटी सी, ठीक है, देन वी विल रिज्यूम फ्रॉम स्टेक होल्डर मैपिंग। 5 मिनट्स ब्रेक, ओके जी। 5 मिनट से, ओके जी। फैसल साहब कह रहे हैं जी 10 मिनट, चलें जी 10 मिनट की कर लेते हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक 7:27 पे हम वापस मिलेंगे, ठीक है। मेरी घड़ी पे इस वक्त 7:17 हुए हैं, तो 7:27 पे मिलते हैं, ठीक है जी, विद स्टेक होल्डर मैपिंग।
ओके जी, शैल वी रिज्यूम? ओके ग्रेट। तो बात हो रही थी, आवाज आ रही है आप लोगों को? बात हो रही थी हमारी स्टेक होल्डर मैपिंग के ऊपर, मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि स्टेक होल्डर्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अ बिजनेस इज दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन अ बिजनेस। यानी किसी एक स्टेक होल्डर की जो इंटरेस्ट है वो आप किसी ना किसी दूसरे स्टेक होल्डर की कॉस्ट पे पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कस्टमर वांट्स अ प्रोडक्ट एट अ चीपेस्ट प्राइस, तो और अगर आप उसे वाकई वो प्रोडक्ट चीपेस्ट प्राइस पे देना चाहते हैं, सो दैट इंटरेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड ओवर द कॉस्ट ऑफ द ओनर्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ओनर्स और द शेयर होल्डर्स। यानी स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है वो यूनिवर्सल नहीं होते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टेक होल्डर्स टू हैव यूनिवर्सल इंटरेस्ट। द स्टेक होल्डर्स हैव ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके ओवरलैपिंग इंटरेस्ट होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज स्टेक होल्डर्स हैव ओवरलैपिंग इंटरेस्ट वी कैन नॉट सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स। ये नामुमकिन है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को इक्वली सेटिस्फाई कर सकें। इट इज मेयरली इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर राइट अवे। फिर इदारे क्या करते हैं? इदारे स्टेक होल्डर असेसमेंट करते हैं। दे असेस द स्टेक होल्डर एंड दे कंसिडर व्हाट शुड बी डन टू विन द सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर, जिनको सेटिस्फाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Organizations are always focusing on those stakeholders whose needs are more important to be satisfied. जिनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन स्टेक होल्डर की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर नोन एज your key stakeholders. And for a business to manage the stakeholder operations, it is always important, first of all, to understand who are the stakeholders and how these stakeholders affect business decisions. Stakeholders हैं कौन और stakeholders जो है वो किस तरह से influence करते हैं आपके business के decisions को। Who are the stakeholders and how those stakeholders directly affect a business decision. यहां पे हम यूज करते हैं मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। हियर वी टॉक अबाउट मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स। ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है ये डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ टू डायमेंशंस, दो चीजों की बुनियाद पे। दिस मैट्रिक्स टॉक्स अबाउट द वे वी मैनेज द स्टेक होल्डर्स। एक तरफ हम रखते हैं इंटरेस्ट और एक तरफ हम रखते हैं पावर, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स का। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। On one side we keep stakeholders और on the other side we keep power, और दोनों की जो रेंज है वो वेरी करती है between 0 and 10। 0 means very weak or very low, 10 means very strong or very high. Power of stakeholder can be weak or strong, interest of stakeholder can be low or high. आवाज नहीं आ रही थी? Can't you hear? Just a moment, एक second please. आवाज आ रही है जी? ओके, सो बेस्ड ऑन टू डायमेंशन पावर एंड इंटरेस्ट, ये पहले भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा डेफिनेटली, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज बीएमबीएस में भी है ये मेरा ख्याल है बीसीबीएस में भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवे, सो आप पावर और इंटरेस्ट की बुनियाद पे आप स्टेक होल्डर को मैप करते हैं। द स्टेक होल्डर who have हाई पावर और लो पावर, मतलब वीक है या स्ट्रॉन्ग है। चार कैटेगरीज हम बनाते हैं स्टेक होल्डर्स की। मिनिमल एफर्ट, द स्टेक होल्डर हैविंग लो इंटरेस्ट एंड वेरी वीक पावर इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। ऐसे स्टेक होल्डर आप एंड पे रखते हैं। ऐसे स्टेक होल्डर दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे स्टेक होल्डर जो है
इनको आप हमेशा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज दीज स्टेक होल्डर्स हैव लीस्ट पावर एंड दीज स्टेक होल्डर्स हैव लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट इन अ फर्म्स ऑपरेशन। एक इदारे के ऑपरेशंस में, एक इदारे के ऑपरेशंस के अंदर ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके इंटरेस्ट भी लो हैं और इनकी जो पावर है वो भी वीक है। देयर आर सम स्टेक होल्डर्स हु हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट बट पावर इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, लोकल कम्युनिटी, इंटरेस्ट इज वेरी हाई बट दे कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। इंटरेस्ट हाई है लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंशियल नहीं है। तो इनको फिर आपको इन्फॉर्म्ड रखना पड़ता है, कीप इन्फॉर्म्ड, दे हैव टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द फर्म्स ऑपरेशन। इनकी आगाही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको आपको आगाह रखना पड़ता है, आगाह रखना पड़ता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के ऑपरेशन क्या है, कंपनी के मामलात क्या है। तो यू हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड। स्टेक होल्डर हैविंग हाई पावर बट लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाइड। इंटरेस्ट से यहां मुराद है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डज नॉट मीन पर्सनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इस कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल हो जाते हैं। इरफान, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? इफ यू कैन जस्ट रीजॉइन। बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? प्लीज रिस्पॉन्ड। एवरीबॉडी कैन हियर मी क्लियरली? ओके, गुड। Irfan, you can rejoin, or it might be an issue. Public are also customers. Exactly. एक क्वेश्चन गुजरा जी अभी ऊपर, एक मिनट, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, जनरल पब्लिक की बात हो रही है। कस्टमर होते पब्लिक में से ही है, लेकिन कस्टमर्स आर नॉट काउंटेड इन पब्लिक। कस्टमर्स आर योर की प्लेयर्स। अभी हम आगे जाकर देखेंगे कनेक्टेड स्टेक होल्डर में की प्लेयर्स तो आपके की कस्टमर्स होते हैं। पावर इज हाई बट इंटरेस्ट इज लो। पावर वीक है, अपना पावर स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंटरेस्ट लो है, इन्हें हम कीप सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, आपके लोअर लेवल एम्प्लॉइज, उनके जो इंटरेस्ट है वो अपनी जात की हद तक होते हैं। देयर इंटरेस्ट आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन सेल्फ। दे हैव नॉट larger interest of organization, they have only an interest for their own sake. So interest is quite low but power high होती है। किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की एग्जांपल हम इसमें अगर कोड करें, लेट्स टॉक अबाउट अ यूनिवर्सिटी। लेट्स टॉक अबाउट अ यूनिवर्सिटी। तो एक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी उसका स्टेक होल्डर है, जनरल पब्लिक भी उसका स्टेक होल्डर है, you see. And if we talk about, अच्छा, okay, fine. Irfan, then for a university, different categories of stakeholders are there. अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, दे हैव हाई इंटरेस्ट बट दे हैव लो पावर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ कीप इन्फॉर्म्ड सेल, यू सी। अच्छा, आपकी जो जनरल पब्लिक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी के गिरदोनवा के जो लोग हैं, वो जनरल पब्लिक है आपकी, लो पावर, लो इंटरेस्ट, मिनिमल एफर्ट। यूनिवर्सिटी के जो आपके टीचर्स हैं, दे हैव हाई पावर, दे कैन टेक द यूनिवर्सिटी टू एनी डायरेक्शन, बट दे हैव सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट। उनके जो इंटरेस्ट है वो सेल्फ सेंटर्ड है, so they have to be kept satisfied. And then we have key players. की प्लेयर्स जो होते हैं, जनरली की प्लेयर्स में हम काउंट करते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को। जी, दोबारा मैं कर देता हूं। की प्लेयर्स में हम काउंट करते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आर द स्टेक होल्डर्स
जो एक फर्म के बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स 4 किस्म के होते हैं मेनली। की कस्टमर, की सप्लायर्स, NEDs, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर भी मेजर शेयर होल्डर्स। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो की प्लेयर्स होंगे, दे माइट बी योर की सप्लायर्स, दे माइट बी योर की कस्टमर्स। की कस्टमर वो जो सबसे इन्फ्लुएंशियल कस्टमर्स होते हैं, ऐसे कस्टमर जो किसी भी इदारे की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अपना फेट है उसको डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर द की कस्टमर्स। की कस्टमर्स आर द कस्टमर्स दैट हैव अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल ऑन अ फर्म्स ऑपरेशंस। की कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो एक फर्म के ऑपरेशन को, आपने सुना हो कभी शायद 80-20 रूल। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सच रूल? एक रूल होता है 80-20 रूल, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। इसे कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसे नाम देते हैं परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल इसे कहते हैं 80-20 रूल। It's a very universal rule. 80% of a firm's profits comes from top 20% customers. 80% of a firm's working depends on only 20% employees. 20% employees के ऊपर एक फर्म की 80% वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है। इसे कहते हैं 80-20 रूल। तो वो जो 80% कस्टमर्स हैं वो आपके की कस्टमर्स हैं। इसी तरह 80% ऑफ अ फर्म्स परचेजेस आर मेड टू ओनली 20% सप्लायर्स। आप इस रूल को अपनी रूटीन लाइफ में भी इस्तेमाल करके देखें तो ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपना मंथली कॉल लॉग निकालें। लेट्स ड्रैग आउट योर मंथली कॉल लॉग और आप देखेंगे लेट्स सपोज आपने पूरे महीने में कोई 200 कॉल्स जो है वो की है। ठीक है, आप अपनी फोन बुक निकालें। जस्ट ब्रिंग आउट योर फोन बुक। लेट्स से आपकी फोन बुक में 100 नंबर्स सेव्ड है। ठीक है जी। 80-20 रूल के मुताबिक आउट ऑफ 200 अराउंड 150 प्लस कॉल्स मस्ट हैव बीन मेड टू ओनली 20 नंबर्स फ्रॉम योर फोन बुक। ऐसा ही होता है ना, रूटीन नंबर्स आप बार बार डायल करते हैं अपने फोन के। ठीक है, इट्स अ वेरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसे कहते हैं 80-20 रूल। इसे नाम देते हैं परेटो एनालिसिस का। वर्किंग ये है कि जो आपके की प्लेयर्स होते हैं, द की प्लेयर्स, ये जो आपके स्टेक होल्डर्स में जो की प्लेयर्स होते हैं, इनको डिटरमिन करने के लिए हमें की स्टेक होल्डर्स का अंदाजा लगाना पड़ता है। हमारे की स्टेक होल्डर्स कौन? ये मैंने एग्जांपल दी है की कस्टमर को समझाने के लिए कि कस्टमर में और की कस्टमर में क्या फर्क होता है। कस्टमर को शायद आप यहां पे रखें कीप इन्फॉर्म्ड में, क्योंकि कस्टमर का इंटरेस्ट ज्यादा लेकिन पावर कम है। बट की कस्टमर जो होगा उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, उसकी पावर भी ज्यादा होगी। की कस्टमर जो है, ही और शी मस्ट बी हैविंग हाई इंटरेस्ट एज वेल एज हाई पावर इन द फर्म ऑपरेशन। कस्टमर का इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, मतलब की कस्टमर का इंटरेस्ट भी। हम डिस्कस कर रहे हैं मेंडलोव मैट्रिक्स को, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। एक तरफ रखते हैं पावर और एक तरफ रखते हैं इंटरेस्ट को। पावर कैन रेंज फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग 0 to 10 की स्केल पे। इंटरेस्ट कैन रेंज फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। नाउ बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट वी डिटरमिन के कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे लिए ज्यादा क्रिटिकल है और कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे लिए कम क्रिटिकल है। Which stakeholder is important to serve and which stakeholder can be managed. For example, government. Government can be a key player. For some businesses, government can be a key player, having high power, highly influence करते हैं आपके डिसीजंस को, और इंटरेस्ट भी हाई होता है आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर। मतलब ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। हो सकता है किसी बिजनेस के अंदर कस्टमर जो है वो यहां की बजाय आप उन्हें यहां पे रख दें। मतलब स्टेक होल्डर मैपिंग जो है ये वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर इदारा अपने हिसाब से मैप करता है अपने स्टेक होल्डर को। हर इदारा जो है वो अपने स्टेक होल्डर को अपने हिसाब से मैप करता है और फिर वो अंदाजा लगाता है कि उसने कैसे मैनेज करना है
इस स्टेक होल्डर कैटेगरी को। मिनिमल एफर्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड एंड कीप लेयर्स। So every organization has a different way to manage the stakeholders' interest. Every organization has a different way to deal with the stakeholders and to deal with their level of understanding with the organization. इस पर इंशाल्लाह केस स्टडी में आपके साथ शेयर करूंगा। यू विल रीड द केस स्टडी, देन एक आइडिया और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह इस केस के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, ठीक है। एनी हाउ, स्टेक होल्डर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। अच्छा एक क्विक रिव्यू है, बस आखिरी दो चीजें रह गई हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, इंटेंडेड एंड इमरजेंट स्ट्रेटजीज। इंटेंडेड स्ट्रेटजी वर्ड निकला है इंटेंशन से, वर्ड जो है दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटेंशन। इंटेंडेड स्ट्रेटजी का मतलब होता है अ स्ट्रेटजी दैट इज प्लान्ड इन एडवांस। ऐसी स्ट्रेटजी एक फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस से गुजर के आती है। इंटेंडेड स्ट्रेटजी इज डेवलप्ड थ्रू अ फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस। इंटेंडेड स्ट्रेटजी जो है दैट इज डेवलप्ड थ्रू अ कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, अप्रूवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। इंटेंडेड स्ट्रेटजी हैज टू बी फ्लेक्सिबल एनफ कि अगर कोई एनवायरमेंटल चेंज आए तो वो उस एनवायरमेंटल चेंज की बुनियाद पे जो इमरजेंट स्ट्रेटजी आएगी उसको डेवलप कर सके। एक होती है इंटेंडेड स्ट्रेटजी और एक होती है इमरजेंट स्ट्रेटजी। इंटेंडेड स्ट्रेटजी इंटेंशन पे बेस करती है, आपकी ओवरऑल जो डेवलप्ड स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बेस करती है। इमरजेंट स्ट्रेटजी इमर्ज होती है, एनवायरमेंटल चेंजेस से सामने आती है। इमरजेंट का मतलब होता है उभरना। इमरजेंट मीन टू ग्रो करना, डेवलप होना, उभरना। इमरजेंट स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल, वी मस्ट अडॉप्ट, मतलब हमेशा हम इंटेंडेड से स्टार्ट करते हैं। वी ऑलवेज बिगिन विद इंटेंडेड स्ट्रेटजी, बट इट कैन नेवर हैपन कि वो इंटेंडेड स्ट्रेटजी डिजायर्ड रिजल्ट क्रिएट करे आपके लिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जो है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अ कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की वो एक प्राइस सेट करते हैं एंड दे फोरकास्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल। वो फोरकास्ट करते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स जो है वो एक्वायर करेंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेट्स सपोज उनका फोरकास्ट क्या है कि वो 10,000 यूनिट सेल करेंगे अगले क्वार्टर में। They are going to sell 10,000 units in the next quarter. The moment they have launched the product, environmental reaction सामने आएंगे, competition सामने आएगा, and a competitive organization will launch a competitive product. Now what will happen? अब कंपनी का जो desired goal था वो तो पूरा नहीं हो पा रहा। फिर कंपनी उस वक्त जो स्ट्रेटजी अप्लाई करेगी that would be emergent strategy. उस वक्त जो कंपनी डिसीजन मेकिंग करेगी that would be emergent strategy. उसे आप नाम देते हैं emergent strategy का। बॉयकॉट डिफाइन करता है इमरजेंट स्ट्रेटजी को, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, एज ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट। इंक्रीमेंटल मीन स्टेप बाय स्टेप। ये इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट आप किसमें करते हैं? इंटेंडेड स्ट्रेटजी में करते हैं। इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स आर डन इन इंटेंडेड स्ट्रेटजी टू द एनवायरमेंटल स्टेट दैट कैन नॉट बी डिसर्न्ड और एंटिसिपेटेड, मीन फोरकास्टिंग। आप जब तक एक स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करेंगे, हाउ वुड यू नो कि एनवायरमेंटल रिएक्शंस क्या आएंगे? तो इमरजेंट स्ट्रेटजी को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फोरकास्ट इमरजेंट स्ट्रेटजी। इमरजेंट स्ट्रेटजी को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। हाईली टर्बुलेंट एनवायरमेंट में, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर, इज अ हाईली टर्बुलेंट सेक्टर। हाईली टर्बुलेंट एनवायरमेंट के अंदर इमरजेंट स्ट्रेटजीज का डिसेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। तो हर चीज के लिए यू कैन नॉट सीक द परमिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट फॉर एवरी स्ट्रेटजी। टॉप मैनेजमेंट की परमिशन को आप सीक नहीं करते, बल्कि एट टाइम यू हैव टू मेक सम डिसीजंस एट योर ओन। आपको बहुत सारे जो डिसीजंस है वो खुद लेने होते हैं। यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस एट योर ओन एंड फॉर यू आर नॉट सीकिंग द परमिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। आप टॉप मैनेजमेंट परमिशन को हर वक्त नहीं सीक कर रहे होते, बल्कि बहुत सारे डिसीजन आप अपने ओन पे ले रहे होते। तो इमरजेंट स्ट्रेटजीज के लिए फिर इदारे के अंदर एक डीप इंसाइट होना बहुत जरूरी है कि कब ये मूव हमें लेनी है। फिर यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं। एक टर्म है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, डेफिनेशन की हद तक इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है? इट्स अ हाई लेवल स्टेटमेंट कि एक इदारा अपने विजन को कैसे अचीव करेगा। हाउ एन
ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू अचीव इट्स विजन, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक होती है इंटेंडेड स्ट्रेटेजी, प्लान करके एक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, एक होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कहने को सिर्फ वर्ड स्वैप हुए हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर आप रिसोर्स कैपेबिलिटी को भी इवैल्यूएट करते हैं, यानी अगर कल को आपको कोई अपना विजन अचीव करना है तो करंट रिसोर्सेज को आपने कैसे चेक करना है, कैसे एक्सपैंड करना है ताकि आप अपने उस विजन को अचीव कर सके लॉन्गर रन में। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर दोनों आती हैं स्ट्रेटजी, इंटेंडेड भी आती है, इमर्जेंट भी आती है। और स्ट्रेटेजिक इंटेंट एनकम्पासेस बोथ स्ट्रेटजीज, इंटेंडेड एंड इमर्जेंट। अच्छा, एक होती है एनफोर्स्ड चॉइस। Sometimes management has to apply a strategy. They are forced to apply a strategy. For example, पाकिस्तान में देखें टेलीकॉम सेक्टर in Pakistan, they are forced to apply different marketing strategies. You know, they are offering different data bundles, product bundles, SMS bundles, क्योंकि इसके अंदर एक फिनोमिना है that is बिकॉज इसके अंदर एक फिनोमिना है दैट मतलब एक कंपटीशन इतना ज्यादा सीवियर है कि वो फिर भेड़ चाल बन चुकी हुई है। जो दूसरे कर रहे हैं वो ही आप करेंगे, ऑल कंपेटिटर्स आर डूइंग द सेम, यू सी। तो ये एक किस्म का एक भेड़ चाल बन जाती है। एनफोर्स चॉइस जनरली एक वीकनेस होती है, इट्स अ वीकनेस ऑफ अ कंपनी। एनफोर्स चॉइस जो है इट्स अ वीकनेस, यू सी। ये बिल्कुल डेफिनेशन की हद तक एक दो बातें हैं जो जरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में से फ्यूचर बेसिंग का। इसे इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू रैप अप द क्लास 5 मिनट्स अर्लियर। मेरा ख्याल है शायद बिलाल साहब जो हैं वो कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोगों से, तो स्टे ऑनलाइन, ठीक है जी। तो द क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ। आप अपने ग्रुप के ऊपर काइंडली आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक केस स्टडी में अपलोड करूंगा स्टेक होल्डर्स की, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, उसे अटेम्प्ट करने की आप कोशिश भी कीजिएगा। फ्यूचर बेसिंग को जस्ट एक स्लाइड है इसकी, सिर्फ 3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कंपेलिंग विजन, माइलस्टोन एंड रियलिटी चेक। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द टॉपिक। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड मी एन ईमेल, यू कैन पोस्ट ऑन दैट ग्रुप, ठीक है। बट इसे एक दफा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करके तो हम इंशाल्लाह एनवायरमेंटल एनालिसिस पे जाएंगे जी। फर्स्ट चैप्टर का बस ये आखिरी एलिमेंट है फ्यूचर बेसिंग, इसे आप लोग एक दफा खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, और आप फेसबुक के ग्रुप के ऊपर भी अपना मैसेज या कमेंट छोड़ सकते हैं। गॉट इट? क्लियर जी? एनी कंसर्न, एनी क्वेरी, कोई बात जहन में, कोई कंसर्न? चलो ग्रेट, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक होती है आपसे मुलाकात। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।